God's family, the universal family. Hallelujah. 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 परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କର महिमा ହେଉ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, आज हम फिर से आपको परमेश्वर की सच्चाई को बताने के लिए आए ଆଜି हैं। ଆଜି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟତା କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛୁ। परमेश्वर हमेशा दुनिया के सच्चाई को लोगों को बताता है। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ସେ ଦୁନିଆର ସତ୍ୟତାକୁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। और आज विशेष करके अंत की दिनों की वो सच्चाई को हम आपको बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। ଆଜି ସେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦୁନିଆର ସତ୍ୟତା କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛୁ। अंतिम दिनों ର सत्यता, अंत के दिनों की सच्चाई। ଆମେ ଅନ୍ତିମ ଦିନର ସତ୍ୟତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛୁ। बाइबल ज्यादा से ज्यादा अंत के दिनों के बारे में भविष्यवाणी कहा है। ବାଇବେଲରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତିମ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହୁଅଛି। यीशु मसीह भी बहुत बार अंत के दिनों के बारे में भविष्यवाणी कहा है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ସେ ଅନ୍ତିମ ଦିନର ବିଷୟ କହିଅଛନ୍ତି। बाइबल में जितने भी भविष्य वक्ता थे, ବାଇବଲରେ ଯେତିକି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଥିଲେ सबके सब अंत के दिनों के बारे में भविष्यवाणी बोल के चले गए हैं। ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତିମ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିକି ସେମାନେ ଯାଇଅଛନ୍ତି। क्योंकि बाइबल हमें वर्तमान की परिस्थिति को बताता है, କାରଣ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଥାଏ, अतीत के बारे में बताता है ଅତୀତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥାଏ और भविष्य के बारे में बताता ଆଉ है। ଭବିଷ୍ୟତର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥାଏ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, क्योंकि परमेश्वर अतीत को भी जानता है, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅତୀତର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି, वर्तमान को भी जानता है ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି और भविष्य में क्या होने वाला उसे अच्छे से मालूम है। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, वर्तमान जगत में कौन सी परिस्थिति परमेश्वर को अच्छे से मालूम है। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଅଛି ପୃଥିବୀରେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ये जो वर्तमान का जो परिस्थिति जो दुनिया में है, ଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଅଛି 4000 साल पहले बाइबल में लिखी गई है। 4000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। 4000 साल पहले बाइबल में जो जो लिखी गई है, वर्तमान वही सब दुनिया में घट रहा है। 4000 ପୂର୍ବରେ ବାଇବଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, परमेश्वर बहुत ही अद्भुत, ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ। परमेश्वर आपके अतीत को जानता है, आपके वर्तमान को जानता है और आपके आने वाले भविष्य को वो जानता है। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, वर्तमान ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ମୌସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, अंत के दिनों में समाज बदलेगी, ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, अंत के दिनों में देश बदलेंगे, ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, देश की परिस्थिति बदलेंगे, ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ, समाज की परिस्थिति बदलेंगे, ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ, परिवार की परिस्थिति बदलेंगे ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ और इंसान खुद भी बदल जाएगा। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। जो इंसान को परमेश्वर ने पवित्र करके सृष्टि किया था, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ରୂପରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ वो इंसान अंत के दिनों में अपवित्र अशुद्ध हो चुका है। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ସେ ଅପବିତ୍ର ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, बाइबल हमें अंत के बारे में बताता है। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ଦିନର କଥା କହେ। अंत के दिनों में दुनिया क्या क्या परिस्थिति में होकर के गुजारेगा। ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଦୁନିଆ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବ। अंत के दिनों में दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं देखने के लिए मिलेगा। ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଦୁନିଆରେ କେଉଁ କେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଘଟିବାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ अंत ପାଇବା। के दिनों में समाज का परिस्थिति कैसा होगा। ଅନ୍ତିମ ଦିନର ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି କି ପ୍ରକାର ହେବ। अंत के दिनों में देश का परिस्थिति कैसा होगा। ଅନ୍ତିମ ଦିନର ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି କି ପ୍ରକାର ହେବାକୁ ଯିବ। अंत के दिनों में समाज में रहने वाले परिवारों में कौन कौन सी परिस्थितियां दिखाई देगी। ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ସମାଜ ରହିଥିବା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। अंत के दिनों में इंसान कैसे स्वार्थ बन जाएगा। ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବ। अंत के दिनों में इंसान कैसे, ଅଧର୍ମରେ ସେ ଚାଲିଯିବ। अंत के दिनों में कैसे इंसान सच्चा परमेश्वर को छोड़ के
अपने लिए बहुत सारे काल्पनिक देवी देवताओं को बना के उसके पीछे चलेगा, अंतिम दिनर मनुष्य कि प्रकार भाव सत्य परमेश्वर को छाड़ी कल्पित देवादेवी मानक से विश्वास करके बढ़िबो। अंत के दिनों में इंसान परमेश्वर की ज्योति को ठुकरा के संसार के अंधकार में कैसे बढ़ते चलेगा। अंतिम दिनर मनुष्य ज्योति रूप परमेश्वर को परित्याग करी अंधकार में कि प्रकार से चलिबो। अंत के दिनों में इंसान का स्वभाव, चरित्र, चाल चलन कैसा होगा। अंतिम दिनर मनुष्य स्वभाव चालीचलन चरित्र की प्रकार ही जीवो। अंत के दिनों में इंसान का ज्ञान और बुद्धि कैसा होगा। अंतिम दिनर मनुष्य ज्ञान बुद्धि की प्रकार हेबो। वो सारे बातें बाइबल में भविष्यवाणी के रूप में लिखी गई है। ए समस्त विषय बाइबल रे भविष्यत बाणी स्वरूप लिखा जाय अछि। आज हम देखेंगे आज आमे देखिबा को पाइबा परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र बाइबल, परमेश्वर का पवित्र वाक्य रे दूसरा तिमुथियुस का 3 अध्याय 1 से हम लोग 5 तक पढ़ेंगे। द्वितीय तिमोथी 3 पर्व 1 रु आमे 5 जाय अध्ययन मैं करिबा। फिर से कह रहा हूं, दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 1 से लेकर के 5 तक हम पढ़ेंगे। मो पुनर्बार कहिबा पाई जाए द्वितीय तिमोथी 3 पर्व 1 पद रु 5 पद जाय आमे पढ़िबा। 3 का पहला आयत में लिखा है, 3 रो प्रथम पद लिखा जाए, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। किंतु यह जानी थाओ जे शेष काल रे भीषण समय उपस्थित हबो। कठिन समय, कठिन समय जहां भी देखो रोग, संकट, समस्या, बीमारी, महामारी। जो आड़े देखंतु न काहे कि रोग, समस्या, महामारी। जहां भी देखो लड़ाई, झगड़ा, युद्ध, संग्राम। जो आड़े देखंतु न काहे कि झगड़ा लड़ाई चली रहिथिबो। जाति जाति के विरोध में युद्ध और संग्राम। जाति जाति मध्य रे झगड़ा होथिबो। देश देश के बीच में युद्ध और संग्राम। देश देश मध्य रे युद्ध संग्राम हबो। परिवार परिवार के बीच में लड़ाई झगड़ा। परिवार परिवार मध्य रे झगड़ा होथिबो। समाज के बीच में लड़ाई झगड़ा। समाज मध्य रे मतलब दुष्टता, छल कपट दिखाई देगी। आज परिवार मध्य रे विभिन्न प्रकार छल कपट दुष्टता देखा जिवो। कठिन समय अंत के दिनों में, ओ बहुत बड़ा कठिन समय अंतिम दिन रे आसीबो। समय समय पर साइक्लोन होगा, भूकंप होगा, बीमारी, महामारी आएगी। समय समय मध्य भूमिकंप, साइक्लोन, महामारी आसीबो। और इंसान का ज्ञान और बुद्धि आकाश मार्ग तक जाएगी। मनुष्य ज्ञान बुद्धि आकाश छुई जीवो। इंसान की ज्ञान और बुद्धि सीमा पार होगी। मनुष्य ज्ञान बुद्धि सीमा पार हो जीवो। इंसान एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाएगा। मनुष्य गोटे ग्रह रो अन्य एक ग्रह को चली जीवो। एक देश में लेकर के दूसरे देश में जाने के लिए कुछ समय में वो पहुंच जाएगा। एक देश रो एक अन्य देश को किसी समय मध्य से पहुंच जीवो। इंसान इस धरती में रह करके ही लाखों लाखों ग्रह नक्षत्रों के बारे में बहुत कुछ खोज करके निकालेगा। मनुष्य केवल पृथ्वी मध्य रही विभिन्न प्रकार ग्रह नक्षत्र मध्य रे आउ से विभिन्न भाव रे खोज करी से बाहर करिवो। अंत के दिनों में इंसान का ज्ञान बुद्धि बढ़ेगा। अंतिम दिन रे मनुष्य रो ज्ञान मध्य वृद्धि हबो। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी बढ़िबो। इंसान का जो ज्ञान बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। मनुष्य रो ज्ञान बहुत अति शीघ्र बढ़ी चलिबो। ज्ञान के बढ़ते से ज्ञान वृद्धि हवा द्वारा और जितने ज्ञान भी बढ़ेगा, जिते ज्ञान से बढ़िबो, जितने भी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जिते मध्य अज्ञान बनि जीवो। ज्ञान और विज्ञान के जमाने में इंसान अज्ञानी बनेगा। ज्ञान विज्ञान रो समय रे मनुष्य अज्ञान होई जीवो। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कठिन समय आएगी। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଯାଏ କଠିନ ସମୟ ଆସୁଅଛି। भीषण समय उपस्थित हबो। भीषण समय उपस्थित हबो। अर्थात कठिन समय। अर्थात कठिन समय। इंसान के जीवन में से प्रेम, आदर, दया, क्षमा, ममता धीरे धीरे वो लोप पाएगी। मनुष्य जीवन रे दया, क्षमा प्रेम ए समस्त धीरे धीरे लोप पाइबाको जीवो। पवित्रता, धार्मिकता लुप्त हो जाएगी। पवित्रता, धार्मिकता धीरे धीरे कमिबाको जीवो। सच्चाई, आदर, ममता, भाईचारा धीरे धीरे दुनिया में से लुप्त होगी। सच्चाई बा सत्यता, आदर पुणी भाईचारा ए समस्त धीरे धीरे लुप्त हेबाको जीवो। इंसान जानवर की तरह निष्ठुर और अज्ञानी बनेगी। मनुष्य पशु परि से निष्ठुर और अज्ञानी ही जीवो। इंसान जानवर की तरह निर्लज और बेशरम होगी। मनुष्य अंतिम समय रे आओ पशु परि से निर्लज हो जीवो। इंसान बहुत ही कठोर बन जाएंगे।
मनुष्य बहुत बहुत से कठिन बनिଯିବ से इंसान बहुत ही स्वार्थी और निष्ठुर बन जाएंगे। आउ मनुष्य गोटे स्वार्थपरता ହେଇଯିବ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मोर प्रिय भाई भौणी गण, यह है परमेश्वर का भविष्यवाणी बाइबल के अनुसार। परमेश्वरଙ୍କର भविष्यवाणी परमेश्वरଙ୍କ वाक्य अनुसार मेरे प्यारे भाई और बहनों, मोर प्रिय भाई भौणी माने दूसरे आयत में लिखा है, द्वितीय पद लेखा जाए, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टलने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, अबाध्य, अकृतज्ञ, अपवित्र, स्नेहशून्य, अमिलन प्रिय, अपवादक, अजितेन्द्रिय, प्रचंड उत्तम विषयर घृणाकारी, विश्वासघातक, दुस्साहसी, दाम्भिक हेबे और ईश्वर प्रिय न होई बरं विलासर प्रिय हेबे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मोर प्रिय भाई भौणी, यह है परमेश्वर की पवित्र वचन की सच्चाई। यह होची परमेश्वरଙ୍କ वाक्यर सत्यता। इंसान स्वार्थी होगा, मनुष्य सत्य, मनुष्य स्वार्थपर हबो, इंसान लोभी होगा, मनुष्य लोभी हेबो, अहंकारी, अभिमानी होगा, अहंकारी बा अभिमानी हेबो, और निंदक, आउ से निंदक, हमेशा दूसरों के ऊपर निंदा इल्जाम प्रति लगाना, मुहूर्तरे अन्य प्रति से निंदा कथा कहिबो, और माता पिता की आज्ञा को टलने वाला होगा, आउ पिता मातांकर अबाध्य हबो, और कृतघ्न होगा। अकृतज्ञ से हबो, हाँ, कृतघ्न अर्थात अकृतज्ञ, अकृतज्ञ हबो, और अपवित्र, आउ से अपवित्र, और दया रहित, आउ से निर्दय से हबो, क्षमा रहित, आउ क्षमा ता मध्य न थिबो, और दोष लगाने वाला, आउ से अन्य को दोष लगे, और असंयमी मतलब जो संयम नहीं रहेगा, आउ सेमान को मध्य स्वयं न थिबो, कठोर हो जाएगा, काठोर ହେଇଯିବ से, और भले की बैरी मतलब अच्छे काम का दुश्मन बनेगा, से उत्तम कर्मर से शत्रुता ହେଇଯିବ, सच्चाई का दुश्मन बनेगा, आउ सत्यर से शत्रुता ହେଇଯିବ, परमेश्वर का शत्रु बनेगा, परमेश्वरଙ୍କ शत्रु ହେଇଯିବ, पवित्रता का शत्रु बनेगा, आउ पवित्रतार शत्रु से ହେଇଯିବ, धार्मिकता की शत्रु बनेगा, आउ धर्मर से शत्रु, अधर्म आगे बढ़ुथिबो से, इंसान का मन, चरित्र, प्राण, हृदय पाप और अधर्म में भर जाएगा। मनुष्य आउ ता जीवन रे पाप अधर्म मध्य से भरी जीवो, इंसान भक्तिहीन होगा, मनुष्य मध्य रे भक्ति न थिबो, परमेश्वर के प्रति इंसान का भय पूरा नष्ट हो जाएगा, मनुष्य मध्य रे ईश्वर के प्रति भय आउ न थिबो, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम, श्रद्धा, भय, भक्ति वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। आउ मनुष्य परमेश्वर के प्रति धीरे धीरे तांकर कोन हे जीवो कि प्रेम आउ दया ए समस्त विषय कमी कमी जीवो। इंसान केवल नाम के वास्ते अपने आप को धर्मी दिखाएगा, पवित्र दिखाएगा, नाम के वास्ते वो भय और भक्ति का कपड़ा पहनेगा। से केवल नाम रे केवल प्रभु को प्रति भय भक्ति आउ ता कपड़ा बा ड्रेस पोशाक द्वारा से देखाई बसे। इसलिए 5 आयत में लिखा है, सेति पाई 5 पद लिखा जाए, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे से माने भक्तिर भेक धरंती, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, किंतु सेतिर शक्ति को अस्वीकार करंती। बाइबल कहता है ऐसे लोगों से दूर रहना। बाइबल कहे ए प्रकार लोग मटर दूर रुह। इंसान अपने आप को समाज के सामने साधु संत दिखाएगा, मनुष्य आ समाज रो सामने रे निजे को साधु संत देखा जीवो, अपने आप को धर्म गुरु के रूप में दिखाएगा, आ निजे को गोटे धर्म गुरु भाव से देखा जीवो, अपने आप को धर्म गुरु और पुरोहित बन के लोगों के सामने खड़ा होगा, लोक मान को सामने रे गोटे साधु गोटे भक्त भाव से देखा जीवो, लेकिन वो समाज में नफरत फैलाएगा। किंतु से समाज रे विभिन्न प्रकार नफरत बा घृणा मनोभाव से देखाइबो। इंसान धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे से भेदभाव करेगा, नफरत करेगा, ईर्ष्या करेगा। मनुष्य धर्म नारे परस्पर मध्य घृणा आ विभिन्न प्रकार भेदभाव से देखाइबो। इंसान एक दूसरे को जाति धर्म के नाम पर मारेगा, पीटेगा, जलाएगा, हत्या करेगा। मनुष्य धर्म नाम रे जाति नारे परस्पर मध्य विभिन्न प्रकार दंगा, विभिन्न प्रकार कलि झगड़ा को से देखाइबो से। परिवार में केवल अशांति, लड़ाई झगड़ा होगी। परिवार रे
केवल अशांति लड़ाई झगड़ा हबो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मोर प्रिय भाई भौणी, वर्तमान के समाज में यही सारी बातें देखने के लिए मिलता है। वर्तमान समाज रे ए समस्त विषय में देखिबा को पाउछु। समाज में पवित्रता और सच्चाई बहुत, मेरा ही अपना जाति अपना धर्म का व्यक्ति, आज मनुष्य कहूछि मोर जातिर आ मोर जातिर लोक बोली कि ये मेरा जाति ये मेरा धर्म का व्यक्ति है, ଏହା ହଉଛି ମୋର ଜାତି ଆଉ ମୋ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଏମାନେ, लेकिन वो एक दूसरे को घृणा करेगा। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଘୃଣା ଭାବ। एक ही जाति के लोग भी अपने आप को एक दूसरे को घृणा करेंगे। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଭାବ ରହିଅଛି। एक ही समाज का होकर के भी एक दूसरे को घृणा करेंगे। ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ରହିଅଛି। एक ही धर्म का व्यक्ति भी एक दूसरे को घृणा करेगा। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ରହିଅଛି। इंसान केवल अपने मुंह में, ମୋର ଜାତି ମୋର ଧର୍ମ ବୋଲି ସେ ଗର୍ବ କରିଥାଏ, लेकिन अपने ही जाति और धर्म के लोगों को वो नफरत और घृणा करेगा। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଘୃଣା କରିଥାଏ। जैसे आज हम हमारे भारत देश में देखते हैं, ଆଜି ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ भारत ପାଉଛୁ देश में ऊंच नीच जाति, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଜାତି ଧର୍ମ ରହିଅଛି। हमेशा इंसान एक दूसरे को जाति के नाम पर धर्म के नाम पर नफरत करता है। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନାଁରେ ଧର୍ମ ନାଁରେ किसी का मटके का पानी भी अगर कोई पी देता है तो ये नीच जाति मेरा मटका छू लिया करके उसको जान से मार देता है। କୌଣସି ଏକ ଆଉ ହାଣ୍ଡିର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଇ ଦିଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। इंसान कहता है ये नीच आदमी मेरा ग्लास छू लिया मेरा मटका छू लिया करके उसको मार देता है। ମନୁଷ୍ୟ କୁହେ ଏ ତ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକ ମୋ ଗ୍ଲାସର ପାଣି ସେ ଛୁଇଁ ଦେଲା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥାଏ। इंसान कहता है मेरा जाति मेरा धर्म, लेकिन वो अपने ही जाति अपने धर्म के लोगों को वो नफरत और घृणा करेगा। ମନୁଷ୍ୟ କହେ ମୋ ଧର୍ମ ମୋ ଜାତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରିଥାଏ। इंसान जाति के नाम पर धर्म के नाम पर दुनिया में अधर्म फैलाएगा। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନାଁରେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଦୁନିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଙ୍ଗା ଫେଲେଇଥାଏ। इंसान जाति और धर्म के नाम पर दुनिया में हर प्रकार की अधर्म करेगा। ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଜାତି ଆଉ ଧର୍ମ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। और इस तरह परिवार में भी होगा। ସେ ପ୍ରକାର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ आज हम परिवारों में देखते हैं ଆଜି ଆମ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା पति पत्नी बीच में प्रेम नहीं है, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, माँ बाप के बीच में प्रेम नहीं ମା है, ବାପାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, भाई बहन के बीच में प्रेम नहीं ଭାଇ है, ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଅ ଆଉ ଦାମାଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, बेटी और बहू के बीच में प्रेम नहीं है। ଆଉ ଝିଅ ଆଉ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। इंसान एक ही परिवार में रहता है, ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ରହିଥାନ୍ତି। मान लीजिए ମନେକର ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାର 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି फिर भी 5 जन का मन और आत्मा एक दूसरे से मिलता नहीं है। ତଥାପି 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ମନ ଠିକ ନାହିଁ। बाइबल में लिखा है, ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ, यीशु मसीह कहा ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି लूक का 12 अध्याय ଲୁକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ उसका 52 और 53 को हम पढ़ना चाहते हैं। ତାର 52 53 ପଦରେ ଆମେ ପଢିବା। प्रभु यीशु मसीह ने यह भविष्यवाणी कहा, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଅଛନ୍ତି, क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। କାରଣ ଅଦ୍ୟାବଧି ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ 5 ଜଣ ଥିଲେ, 2 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 3 ଜଣ ଓ 3 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 2 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ହେବେ। ପୁତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାତା, ମାତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାତା, ମାତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କନ୍ୟା, ବହୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶାଶୁ ଓ ଶାଶୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁ ଭିନ୍ନ ହେବେ। मेरी प्यारे भाई और बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, आज वर्तमान के समाज इसी परिस्थिति में है। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଅଛି। वर्तमान की दुनिया में रहने वाले परिवार इसी परिस्थिति में हैं। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି। आज समाज पाप से परिपूर्ण है। ଆଜି ସମାଜ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। आज सारे जगत पाप और अंधकार में परिपूर्ण ଆଜି है। ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। आज सारे दुनिया पाप के बंधन में है। ଆଜି ସମସ୍ତ ଦୁନିଆ ପାପର ବନ୍ଧନ आज ରହିଅଛି। सारे समाज पाप के बंधन में है। ଆଜି ସମଗ୍ର ସମାଜ ପାପର ବନ୍ଧନ आज ରହିଅଛି। हर एक परिवार, ज्यादा से ज्यादा परिवार पाप के बंधन में है। ଆଜି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ପାପର ବନ୍ଧନ ରହିଅଛି। समाज में, देश में ସମାଜରେ ଦେଶରେ केवल चोरी डकैती लूटपाट କେବଳ ଚୋରି ଆଉ ଡକାୟତ ଲୁଟପାଟ ଚାଲିଛି। और अन्याय अधर्म और भ्रष्टाचार। ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ରହିଅଛି। इंसान धर्म के नाम पर अधर्म करता है, ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଧର୍ମ ନାଁରେ ଅଧର୍ମ କରୁଅଛି। धर्म के नाम पर दंगा फसाद करता है, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଅଶାନ୍ତି
अशांति सृष्टि करू धर्म के नाम में पाप और व्यभिचार करता है, धर्म नारे पाप और व्यभिचार करू धर्म के नाम पर मासूम लोगों को गुमराह। ए प्रकार भाବରେ आज समाज पाप रे परिपूर्ण हो ये वर्तमान का समाज विनाश की ओर जा रहा है। वर्तमान रो समाज विनाश आड़े गति करू अछि। शैतान वर्तमान की परिवारों को, समाजों को और देश को विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। शैतान वर्तमान समाज वर्तमान दुनिया को से पाप आड़े गति करू अछि। आज समाज में शांति नहीं है, आज समाज रे शांति नहीं, परिवारों में भी शांति नहीं है। परिवार रे मध्य शांति नहीं, हमेशा पति पत्नी बीच में लड़ाई झगड़ा, प्रति मुहूर्त स्वामी स्त्री मध्य रे कली झगड़ा चालू, हमेशा पति पत्नी बीच में नफरत और जलन और मारपीट, प्रति मुहूर्त रे स्वामी स्त्री मध्य रे घृणा मारपीट लागी, छोटी छोटी बातों में पति पत्नी अलग हो जाते हैं। छोटे छोटे विषय को लेके स्वामी स्त्री मध्य रे अलगा ही जाउ। आज छोटी छोटी बातों में बेटा और पिता लड़ाई झगड़ा होता है। छोटे छोटे बातों को नहीं कथा को नहीं कि आज पुओ आओ बापा को मध्य रे पृथक ही जाउ छथि। आज जमीन जायदाद और संपत्ति के चलते बेटा पिता को हत्या करता है। धन दौलत के लिए आज पिता भी अपने बेटा को हत्या करता है। टिके धन संपत्ति निमंते आ बापा मध्य निज पुत्र को हत्या कर दियो। आज थोड़े रुपये पैसा और संपत्ति के चलते पति अपने पत्नी की हत्या कर रहा है। टिके धन संपत्ति निमंते आज स्वामी मध्य निज स्त्री को मारी देवो छी। आज थोड़े धन संपत्ति के लिए आज पत्नी भी अपने पति को छोड़ के चली जाती है। आज टिके धन संपत्ति निमंते स्त्री मध्य अपना स्वामी को परित्याग करके छाड़ी चली अपने स्वार्थ के लिए पत्नी भी पति को जहर डाल के मार देती है। और निजर स्वार्थ निमंते निज स्त्री मध्य स्वामी को से विभिन्न प्रकार विश्व खाद्य दे के से मारी देवो छी। आज अपने स्वार्थ के लिए सास ससुर अपने बहू को जहर दे के मार देते हैं। आज किसी स्वार्थ को नहीं कि निजर सासु ससुर निज बहू को मध्य कौन से एक विष दे कि से मारे मारी देवो छी। अपने स्वार्थ के लिए सास ससुर अपने ही बहू को घर से भगा देते हैं। किसी स्वार्थ को नहीं कि निजर सासु ससुर और निज बहू को गृह से माने बाहर कर देवो छी। आज वर्तमान की परिवारों में शांति और पवित्रता नहीं है। आज वर्तमान रो परिवार मध्य रे शांति और पवित्रता नहीं। वर्तमान के समाज में पवित्रता और न्याय नहीं है। वर्तमान रो समाज रे पवित्रता और न्याय नहीं। जहां भी देखो अन्याय और अत्याचार। जोड़ा जानतो ना काहे कि अन्याय अत्याचार चाली रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मोर प्रिय भाई भौणी, पुराना नियम में भी लिखा है, और पुरातन पुस्तक लिखा जाए मीका 7 अध्याय का 6 में लिखा है, मीका 7 तार कारण पुत्र पिता को अमान्य करे, कन्या अपना मातार विरुद्ध रे, पुत्र बधू अपना शाशुर विरुद्ध रे उठे, अपना परिवार रो लोके मनुष्य शत्रु होंती। इसलिए मेरे प्यारे भाई और सेति पाए मोर प्रिय भाई भौणी माने, बाइबल में पहले हम नया नियम में देखे हैं बाइबल रे आमे नूतन नियम रे प्रथमे देखिलु कि कठिन समय आएगी, भीषण समय आसीबो, इंसान स्वार्थी बनेगा, मनुष्य स्वार्थपर हो, इंसान अधर्मी बनेगा, मनुष्य अधर्म हो जिवो, इंसान जंगली जानवर जैसे होगा, आ मनुष्य गुटे जंगलर पशु पर हो जिवो, इंसान हिंसक होगा, आ मनुष्य गुटे हिंसक हो जिवो, इंसान बहुत ही दुष्ट होगा, आ मनुष्य गुटे दुष्ट प्रकृति लोक हो बहुत ही जिवो, पापिस होगा, आ से पाप रे परिपूर्ण हो जिवो, और हमेशा अन्याय अधर्म की ओर बढ़ेगा। आ प्रति मुहूर्त रे अन्याय अधर्म करबा को से आगु इंसान परमेश्वर से दूर होगा, आ मनुष्य परमेश्वर गुठरो दूरवर्ती हबो, ज्ञान और बुद्धि के चलते, ज्ञान और बुद्धि ऊपर निर्भर करी, ज्ञान और बुद्धि के चलते ज्ञान और बुद्धि रे चाली इंसान अपनी इंसानियत को खोएगा। मनुष्य अपना मानविकता को से हरई बसिबो। वर्तमान के समाज में आप देखते हैं वर्तमान समाज को हमें देखुछु, इंसान अपने आप को ज्ञानी बुद्धिमानी कहता है, मनुष्य अपना अपन को ज्ञान और बुद्धिमान को होछि, लेकिन अपने परिवार को सही तरह से नहीं चला पाता किंतु है। अपना परिवार को से हड़पत्र देखि आउ कहा को नहीं कि से पड़े जाय थाए। जो समाज में अपने आप को ज्ञानी बुद्धिमानी कहती है, जे समाज रे निज को ज्ञानी और बुद्धिमान बोली कहंती, अपने बच्चों को और पति को छोड़ के और किसी के साथ भाग जाती है, निजर स्वामी को और निजर बच्चों परिवार को को छाड़ के से अन्य कहा को सहित चली जाय। और इसी तरह से पाप और व्यभिचार दुनिया में भरी हुई है। ए प्रकार भाବରେ आज दुनिया रे पाप और लोक माने परिपूर्ण, जहां भी देखो अन्याय और अधर्म, जोड़ जानतो ना काहे कि अन्याय अधर्म, जहां भी देखो चोरी डकैती, जोड़ जानतो ना काहे कि चोरी और डकायत तो जहां भी जाओ भ्रष्टाचार, जोड़ जानतो ना काहे कि भ्रष्टाचार रही अछि। इंसान अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार के लोगों का शत्रु बन जाता है। मनुष्य अपना स्वार्थ निमंते निज परिवार शत्रु हो जाओ अछि। आज भी एक फोन कॉल हमारे भाई को आया था, आज मते गुटे फोन कॉल
प्रिय भाई को आसीथिला एक पिता उसने क्या किया, अपने पत्नी को जंगल में लेके गया और उसका पत्नी को जान से मार दिया। आ जने बापा निज माँ को नेकी जंगल को नेकी जायकि से जगह तांको हत्या कर देला। एक व्यक्ति अपने ही पत्नी को जंगल में साथ लेके गया और जंगल में जान से मार दिया। जने स्वामी निजर स्त्री को नेकी जंगल में तांको हत्या कर देला। आप दुनिया में जहां भी जाइए, आपण दुनिया रो जे कोनो स्थान को जानतो ना काहे कि किसी भी संवाद या न्यूज या खबरें देखी या पढ़िए, जे कौन स्थान को जाई कि आपण खबर कागज रे देखंतु ना काहे कि आप जो भी समाज पेपर को उलट करके देखिए, आ समाज पेपर जदि आमे काढी के देखिबा, किसी भी टीवी को आप न्यूज को देखिए, जदि कोनोसी टीवी आ न्यूज जदि आमे देखिबा, केवल चोरी डकैती लूटपाट, केवल चोरी डकायत लूटपाट दंगा फसाद हत्या आ दंगा आ अशांति हत्या व्यभिचार कारण है कि इंसान परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। कारण यह कि मनुष्य परमेश्वर कोटर बहुत दूर को चली अंत के दिनों में इंसान परमेश्वर से दूर जाएगा, आजिर अंतिम दिन रे मनुष्य परमेश्वर दूर को चली जीवो, अपने आप को विनाश करेगा, आ निज को विनाश आड़ को नेबो, अपने समाज को विनाश करेगा, निज समाज को विनाश आड़ नेबो, अपने देश को भ्रष्ट करेगा। निज देश को से भ्रष्ट करिबो। ये सब बाइबल में लिखा ये है, समस्त विषय पवित्र बाइबल लेखा ये सब बाइबल की भविष्यवाणी है। यह होची बाइबल रो भविष्यवाणी। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने कहा सेति पाई ए वाक्य रे परमेश्वर कहयो अंत छथि के दिनों में कठिन समय आएगी, अंतिम दिन रे भीषण समय आसीबो, इंसान इंसानियत को खोएगा, आ मनुष्य मानविकता को से हरै बसिबो, इंसान अपने ज्ञान बुद्धि को खोएगा। मनुष्य निजर ज्ञान और बुद्धि को हरै बसिबो, बुद्धि और ज्ञान रहते हुए भी इंसान अज्ञानी बनेगा। आ ज्ञान और बुद्धि रहूरो मत से अज्ञानी हे जीवो। इंसान जानवर से भी नीच हरकत करेगा। मनुष्य पशु ठारू मध्य एक नीच कर्म से करिबो। ये सब बाइबल की भविष्यवाणी ये है। समस्त विषय बाइबल रो भविष्यवाणी। इसलिए मेरी प्यारे भाई और बहनों, सेति पाई मोर प्रिय भाई भौणी माने, इन परिस्थितियों में से अगर आप अपने आप को बचाना है, ए समस्त परिस्थिति यदि आपण बंचेबा पा चाहुछंती, अंत के दिनों के ये अधर्म अन्याय अत्याचार से अगर अपने आप को सुरक्षा करना है, अंतिम दिन रे अन्याय अत्याचार अधर्म जदि आपण को बंचेबा पा चाहुछंती, अंत के दिनों में अगर परमेश्वर के पास आना है, अंतिम दिन जदि आपण परमेश्वर को निकट को आसीबा पा चाहुछंती, अपने जीवन को सुधारना है, निज जीवन को सुधारिबा पा चाहुछंती, अपने जीवन को बदलना है, निज जीवन को बदलेबार अछि, अपने परिवार को बदलना है, निज परिवार को जदि बदलेबा पा चाहुछंती, दुनिया के लिए आशीष का कारण अगर बनना ए है, दुनिया रे आशीष रो कारण जदि पाइबा को चाहुछंती, परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर निकट को आसो। एकमात्र पवित्र परमेश्वर को विश्वास एकमात्र करें, पवित्र परमेश्वर को विश्वास करंतु, एकमात्र सच्चा परमेश्वर को विश्वास करें, एकमात्र सत्य परमेश्वर को विश्वास करंतु, एकमात्र पवित्र परमेश्वर, एकमात्र पवित्र परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर एकमात्र सत्य परमेश्वर जो इंसान को सही शिक्षा देता है, जे मनुष्य को सत्य वाक्य दियंती, इंसान को पवित्र मार्ग में अगुवाई करता है। मनुष्य को पवित्र पत्थर चालिबा को सहाय्य करंती, इसलिए आप पवित्र परमेश्वर अटंती, जो इंसान के पापों को क्षमा करके इंसान को पवित्र जीवन देता है, जो मनुष्य को पाप को क्षमा करके पवित्रता जीवन काटिबा पे सहायता करंती, इंसान को अनंत जीवन देता है। मनुष्य को अनंत जीवन दियंती। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सेति पाई मोर प्रिय भाई भौणी, अंत के दिनों में अंतिम दिन रे संसार की अनुरूपी मत बनो, संसार अनुरूपी होंतु नहीं, संसार की तरह मत बनो। संसारिक होंतु नहीं, हमें अपने आप को बदलना है, निज निज को बदलांतु, परमेश्वर के स्वरूप में अपने आप को बदलना है। परमेश्वर को स्वरूप निज को परिवर्तन होंतु, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कीजिए निजर जीवन को परमेश्वर को निकट समर्पण करंतु, और परमेश्वर के संग संग चलिए, परमेश्वर को अनुगमन करंतु, परमेश्वर के वचन को विश्वास कीजिए। परमेश्वर को वाक्य को विश्वास करंतु, परमेश्वर आपको आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। परमेश्वर आपन को परिवार को बहुल मात्रा रे आशीर्वाद करंतु। हालेलुया, 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 आमेन। आमीन।